میں وہ سرکش ہوں کبھی آتا نہیں جو زیر تھا، میں نہیں کرتا کسی سلطان دنیا کو سلام، ہاں مگر نام حسین ابن علی آتا ہے، میں غلام ابن غلام ابن غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہید ولایت حضرت علی علیہ السلام، وکیل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، علامہ ناصر عباس آف ملتان کی شہادت کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں شوذب علی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس ربائی سے کر رہا ہوں: کبھی عرفان، کبھی محسن، کبھی فاضل، کبھی ناصر، بی بی تیرا آنگن ہے کہ مقتل کی گلی ہے، ہم قبر میں جانے سے کہاں ڈرتے ہیں لوگوں، اس موت کے پردے میں ملاقات علی ہے۔ 15 دسمبر رات 8:04 پر ہم نے علامہ ناصر عباس آف ملتان کا پہلا انٹرویو کیا، جو وائس آف شیعہ کا بھی پہلا انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج 2 سال کے بعد قبلہ محترم کی شہادت کے موقع پر پاکستان کے ممتاز جریدے روزنامہ جنگ، روزنامہ نئی بات سمیت پاکستان اور دیگر ممالک کے جرائد و رسائل اور مختلف ٹی وی چینلز، گورنر ہاؤس سمیت مختلف مقامات پر دیے جانے والے دھرنوں میں اور سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ شیئر کی جانے والی تصاویر اور ویڈیوز اسی انٹرویو سے لی گئی تھی۔ اس مقبول ترین انٹرویو میں قبلہ محترم نے یہ فرمایا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ ناصر عباس آف ملتان۔ سب سے پہلے میں پوچھوں گا قبلہ، آپ اپنے اور اپنے فیملی ممبرز کے بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے ہمیشہ اس بات پہ فخر ہے کہ میں ایک عزادار اور ولایت امیر المومنین رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے خاندان میں میرے والد مرحوم اپنی جستجو سے میٹرک میں پہلے شیعہ تھے، اور ان کے بعد ان کی محنت سے پورا خاندان الحمدللہ اس وقت 90% سے زیادہ مذہب اہل بیت کی حقانیت پر قائم و دائم ہے، اور اس سے بہتر تعارف کوئی نہیں ہو سکتا۔ قبلہ، آپ نے مجلس پڑھنے کی ابتدا کب سے کی؟ شاید عالم ارواح میں پڑھی تھی۔ دنیاوی طور پہ میں نے مجلس پہلی جو پڑھی ہے وہ میرے دادا کا انتقال ہوا تھا، تو ایک ذاکر نے آنا تھا، ہر شب جمعہ مجلس ہوتی تھی۔ ہمارے والد مرحوم عزاداری میں خدا نے انہیں بہت زیادہ بہتر ترین مواقع استعمال کرنے کا فن عطا کیا تھا۔ ہمارے خاندان میں کوئی شادی ہو، کوئی میت ہو، وہ اس بہانے میں رہتے تھے کہ میں ذکر حسین منعقد کراؤں۔ تو ہمارے دادا کے انتقال پہ ہر شب جمعہ مجلس ہوتی تھی، تو ایک ذاکر نے آنا تھا، نہیں آ سکے، تو میں اس زمانے میں شہید محسن نقوی کی مجالس سے بہت زیادہ متاثر تھا، تو ان کی ایک مجلس میں نے یاد کی ہوئی تھی۔ تو میں نے والد صاحب کو پریشان دیکھا، تو میں نے ممبر پہ جا کے تو ساری مجلس کی چھت کو دیکھ کے پڑھ دی۔ قبلہ، آپ نے باقاعدہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کن اداروں سے حاصل کی؟ میں ملتان میں بیسکلی یہاں پر ملتان کے اندر ساری میری تعلیم جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، اور جامعہ شہید مطہری سے اور شیب ابی طالب کراچی سے عربک کی تعلیم کو۔ علامہ ناصر عباس آف ملتان خود کو ایک ماتمی کہلوانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ میں بذات خود امام حسین کا عزادار ہوں، اور جس دن میرے گھر مجلس ہوتی ہے اس دن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری کائنات غریب زہرا حسین بیکس پناہ پہ لٹا دوں۔ وہ نہ صرف ماتمی بلکہ زنجیر زن بھی تھے۔ جس وقت وہ ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے کما زنی کی سٹیچنگ کھلوائی، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ زنجیر زنی میں خون بہانے یا بلڈ بینک میں اسی خون کو ڈونیٹ کرنے کے بارے میں قبلہ محترم کے یادگار کلمات: امام حسین کے نام پہ بلڈ بینک میں خون دے دیں، خون بھی نکل جائے گا، امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں اگر اتنا شوق ہے تو حج والے پیسے یتیم کو جمع کراؤ۔ بکرے کے قربانی کے پیسے بکرا نہ کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ کسی بیوہ کو پیسے دے دو۔ تجھے تعبیر کی یاد منانے کی تمیز نہیں ہے، خواب کی یاد منانے کی تمیز۔ کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے،
ख्वाब अफजल हो नहीं सकता कभी ताबीर से। क़िबला मोहतरम, जहाँ भी शिया नस्ल कुशी और टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया जाता, वहाँ न सिर्फ शिरकत करते बल्कि धरने के शुरका से पुरजोश खिताब भी करते थे। शहदाए कोयटा से इजहार यकजहती के लिए दिए जाने वाले ठोकर न्याज़ बेग लाहौर के धरने में क़िबला मोहतरम ने किस अंदाज से शिरकत की और किस अंदाज से वॉइस ऑफ शिया को अपना इंटरव्यू दिया, इस तमाम का अहवाल देखते हैं। बादशा यही इंटरव्यू मुल्की और गैर मुल्की मीडिया पर दिखाया जाता रहा। करबला के अज़ादार है, हम मरने से नहीं डरते, बल्कि मौत अली के शियों से खौफ खाती है। हमें बड़ी अच्छी तरह याद करता है कि अल्लामा साहब इसी 2013 में जब कोयटा में शिया नस्ल कशी हो रही थी और उनको तमाम ख़ानदानों से इज़हार यकजहती करने के लिए ठोकर न्याज़ बेग के धरने में तशरीफ़ लाए। खिताब करने के फ़ौरन बाद जो चूँकि पुलिस की तमाम जो इस वक्त अदारे वहाँ पे मौजूद थे बड़े मुतहरक हो गए और उनको गिरफ़्तार करना चाहा, लेकिन अल्लामा साहब फ़ौरन से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। तो हमारे एक टीम मेंबर शहबाज अली ने उन्हें जब पीछे से जाकर रोका तो उन्होंने पीछे मुड़कर जब हमारी पूरी टीम को देखा, तो पीछे जब उन्होंने मुड़ के देखा तो हमारे एक सीनियर टीम के मेंबर हैं शोज़ब अली साहब, उन्होंने उनको देखते हुए अल्लामा साहब ने फ़ोन किया, ओए शोज़ब तू बड़ा हो गया यार, अब तो हमें लिफ्ट भी नहीं कराता। तो ये चीज़ें उस वक्त फिर हमने इंटरव्यू किया। जैसे कि पहले भी एक धरना दिया, आपके मुतालबात जो मंजूर हो चुके हैं, इसके बाद फिर एक ये सानहा हुआ, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो कौम को ये अच्छी तरह से मालूम हो चुका है, ये बात हर इंसान को पता है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई शिया सुन्नी झगड़ा नहीं है। अगर ये शिया सुन्नी झगड़ा होता तो मोहल्लों में लड़ाइयाँ पड़ गई होती, घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई होती, हर शहर में लड़ाई पड़ गई होती। क़िबला मोहतरम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते थे, अमन की बात करते थे। क़िबला की शहादत के रोज़ लंदन के रोज़नामा जंग और दी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह का कहना था, अल्लामा नासिर अब्बास ने शहादत से सिर्फ 10 रोज़ पहले ईस्ट लंदन में एक अहले सुन्नत की मस्जिद में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौजू पर कसीर तादाद से खिताब किया। अल्लामा नासिर अब्बास पर इतवार की शब एफसी कॉलेज के करीब हमला किया गया। उन्हें शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो जांबर न हो सके। उनके कत्ल की खबर पर बड़ी तादाद में अज़ादारान शेख ज़ैद अस्पताल जमा हो गए। मुजाहिरीन उनकी मैयत को गवर्नर हाउस ले गए और सड़क पर धरना दिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मैयत का जनाज़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक उनके सर, गर्दन और जिस्म के दीगर हिस्सों में 5 गोलियां लगी। क़िबला मोहतरम ख्वाजगान मरकज़ लाहौर में मजलिस पढ़कर जा रहे थे कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से शहीद हुए। शहादत के मौका पर गाड़ी में क़िबला मोहतरम के ड्राइवर मुनव्वर और इनके शागिर्द नजम अब्बास पिछली सीट पर मौजूद थे। हमारे साथ इस वक्त क़िबला मोहतरम के शागिर्द और ऐनी शाहिद नजम अब्बास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी नजम अब्बास, आपकी शहादत से कबल क्या गुफ्तगू हो रही थी क़िबला से? जब हम वहाँ से निकले तो मजलिस पे बात हो रही थी हमारी, ठीक है ना जी। तो क़िबला साहब ने, मुनव्वर कहता है कि स्पीकर ठीक नहीं था, यहाँ पे साउंड सिस्टम होना चाहिए था, ठीक है जी। तो मैंने मुनव्वर से कहा कि मुनव्वर था तो साउंड सिस्टम ही, लेकिन ऑपरेटर से ऑपरेट नहीं किया गया। जिस कौमी मरकज सातमान खाजगान ट्रस्ट है ये, सही सही, ठीक है जी। वहाँ पे आखिरी मजलिस उस्ताद मोहतरम ने पढ़ी थी, ठीक। तो जब वहाँ से हम निकले तो ये मजलिस के टॉपिक पे हमारी बातें हो रही थी। तो मैंने जब कहा ना कि साउंड सिस्टम लगा हुआ था लेकिन उससे ऑपरेट नहीं किया गया या उससे ठीक मैनेजमेंट नहीं हो सकी उसकी, तो क़िबला साहब कहते हैं हाँ यार स्पीकर वाकई उसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और मेरा गला भी बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया था। तो क़िबला कहते हैं मुझे पानी पिलाओ। तो मैंने नीचे देखा, चूँकि अक्सर होता यही है कि जो शागिर्द पीछे बैठा होता है उसके पास ही पानी वगैरह खिलता होता था। तो मैंने नीचे देखा, मैं उसी वक्त चूँकि गाड़ी में बैठा था इमाम बरगाह से, दिन को क़िबला साहब और मुनव्वर अलहदा यानी अकेले ये दोनों सफर में थे। अगर इनके साथ सफर में था दिन को
तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि किबला साहब ने मुझे फोन करके बुलाया था। जब किबला साहब ने पानी मुझसे मांगा तो मैंने मुनव्वर से पूछा, मुनव्वर पानी किधर है? तो मुस्कुरा के किबला साहब अपने अंदाज में, जिस तरह उनका एक अपना अंदाज था, मुस्कुरा के फरमाते हैं कि बेटे मुनव्वर पहले इसको भी ट्यूशन देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है जी, यही किबला साहब के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद किबला साहब से मैं कोई लफ्ज ना सुन सका हूँ, ना किबला साहब इसके बाद कोई लफ्ज बोले। भाई गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही थी उसमें? भाई जान ये तो ड्राइवर बता सकेगा ना गाड़ी कितनी स्पीड पे थी। मैं मीटर पे थोड़ी निगाहें लगा कर बैठा हुआ था। मेरा भाई खुदा बंदे मुताल पाक बीबी के बेटू के नालैन का सदका आपकी की खातिर खैर में इजाफा फरमाए। क्योंकि किबला साहब के हवाले से मेरी जान भी मेरा भाई हाजिर है, इसलिए कि आज अगर इलाके में मुझे कोई पहचानता है हाफिज नजम अब्बास खतीब अहले बैत के नाम से, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर अब्बास है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से इंसान पहचाना जाए मेरा भाई, उसके लिए और उनकी जो मेरे ऊपर शफ़क़तें थी, मेरे ऊपर एहसानात है, उनका प्यार, उनका मोहब्बत, उनकी चाहत, उनकी ये नवाजिशें मेरे लिए इतनी ज्यादा है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। इस बहुत के हवाले से मैंने आपकी ये देखी है, खुसूसन जो ठोकर लिहाज देख के हवाले से अलाम साहब का बयान था जी। अब हम दूसरे यानी शाहिद किबला के ड्राइवर से बात करते हैं। अच्छा नंबर, आप कहाँ से आ रहे थे और ये वाक़या कैसे पेश आया? हमने मजलिस पढ़ी है कौमी मरकज शाहजहान में, वहाँ से हम नहर पे चढ़े हैं शाह जमाल से, और मुस्लिम टाउन वाला ब्रिज क्रॉस किया है, थोड़ा सा आगे ही गए थे फायरिंग हो गई। अच्छा किबला पानी पी रहे थे बोतल के साथ जिस वक्त फायर किए उन्होंने? पानी उन्होंने मांगा था। अच्छा अभी पिया नहीं था? नहीं, अभी तो शागिर्द बोतल नीचे से उठा रहा था और ऊपर से। अच्छा तो उन्होंने गाड़ी को आगे से रोका था या नहीं? वो साइड से है, लेफ्ट साइड से। गाड़ी स्लो थी? तकरीबन 60-65 की स्पीड में थी। सही। और आपके पास कोई डिफेंस के लिए चीज नहीं? नहीं। सही। इसके अलावा कोई किबला ने बात की हो उससे पहले? नहीं, तुमको मौका ही नहीं मिला। अच्छा आपको पता भी नहीं चला कोई हमारा पीछा कर रहा है या कोई इस तरह से कुछ? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि तो थोड़ी थोड़ी धुंध थी रोड में और अंधेरा भी था। सही। हमें पता नहीं चला कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से। और आपके सामने आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या एहसास था जिसका? हमारे तो होश ही उड़ गए जिस दिन जैसे वो फायरिंग हुई। सही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। भाई जिस वक्त फायर लगे हैं उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने गाड़ी भगाई और शेखजाद पहुंचा। अच्छा ठीक, यही पूछना था आपसे कि जिस वक्त उन्होंने फायर, एक गाड़ी चल रही थी और उन्होंने फायर किए, हाँ जी, उसके फौरन बाद गाड़ी रुक गई होगी? नहीं, गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी चलती ही रही। हाँ जी। और उसके बाद आप शेखजाद पहुंचे? हाँ जी। और सिर्फ फायर किबला को ही लगे थे, उसके अलावा कुछ कहीं पे नहीं? इधर उधर से गुजरते रहे लेकिन हमें नहीं लगे। सही, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। रात हम 12 बजे यहाँ धरना लगा कर बैठ गए थे। 1:30 बजे अल्लामा साहब की डेड बॉडी आई थी और हमारे नौजवान और मस्तूरात डेड बॉडी हुकूमत को पोस्टमार्टम के लिए नहीं दे रहे थे कि जब तक हमारे मुल्ज़मों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन हमारे अकाबरीन ने वो डेड बॉडी भिजवाई, पोस्टमार्टम हो चुका है। अभी उनका गुस्ल के बाद 1:30 बजे तक, 1:45 तक जनाजा आ जाएगा। 2 बजे यहाँ नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। लवाहिकीन और अकीदतमंद हमसे निढाल थे। सगे भाइयों वाला रिश्ता था। अब जब भाई भाई से जुदा होता तो भाई की क्या कैफियत होती है आप समझ सकते हैं। यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरा दुनिया में एक ही दोस्त था और एक ही भाई था जो चला गया है मुझसे जुदा। किबला मोहसिन नकवी के बाद सबसे बड़ा साने हाशिया कौम के लिए यही आज का साने है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद
वकील हक के बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ऐसा वकील बीबी फातिमा ज़हरा के हक पे बोलने वाला कि जो सीना तान के बीबी की वकालत करता था, आज बीबी ने अपने दरबार में उसको बुला लिया। मौलान के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और यकीनन शहीद कभी मरता नहीं। नासिर अब्बास कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और वो एक नहीं लाखों नासिर अब्बास बनाकर चले गए। आइसो पाकिस्तान शहदा के खानवादगान के साथ हमेशा से खड़ी नज़र आई है। इसी तरह से शहीद नासिर अब्बास के खानवादे के साथ हम लोग इज़हार ताज़ियत करते हैं और उनके साथ इस गम में बराबर के शरीक हैं। इंशाअल्लाह वो जहाँ बुलाएंगे हम लोग तैयार नज़र आएंगे। और हर दौर का जालिम जो डरता है वो अज़ादारी मौला मज़लूम करबला से डरता है। और ये अज़ादारी के जो जुलूस जो हैं, ये जिस तरह फरमाया गया कि ये दरअसल ये मातमी और ज़ादारों के उठते हुए हाथ जो है ये सीने पे नहीं पड़ते बल्कि यजीदियत के मुंह पर तमाचा बन के लगते हैं। तो असल जो साजिश हो रही है वो ये हो रही है कि हर सूरत में इन जुलूसों को रोका जाए, लेकिन ये कोई भूल में ना रहे कि ना मिलादुन नबी के जुलूस को रोक सकता है, ना को रोक सकेगा, और ना मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुलूस। अगर कोई हुकूमत है तो उसे मुतालबा करूंगा कि नासिर अब्बास स्वयं से पहले हमें कातिलों को सजा चाहिए। शहादत से अगले रोज़ गवर्नर हाउस लाहौर के सामने धरने के शुरका से किबला की बेटी ने खिताब किया। शहीद की बेटी जहाँ तक आवाज नहीं जा रही थी, उस बच्ची के जुमले थे कि मैं अलामा नासिर की यतीमा बेटी हूँ। मेरे बाबे को शहादत का शौक था और उसने कौम से दरखास्त की है, वो दरखास्त शायद हर किसी ने नहीं सुनी। शहीद की बेटी कह रही थी, मोमिनीन मेरे बाबे का जनाजा जल्दी भेजो, मैं इंतजार कर। किबला के खानवादे की तरफ से इस अपील के बाद ये फैसला किया गया। अभी शहीद का जनाजा मुल्तान की तरफ रवाना होगा। शहीद के वरसा अहले मुल्तान जो फैसला करेंगे, पूरी कौम इस बात की मुंतज़िर है कि वो क्या फैसला करते हैं। शहीद के खानवादों ने कहा कि जल्दी जल्दी वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारे मरहूम और शहीद के जनाजे को हमारी तरफ भेजा जाए। जो वो फैसला करेंगे, पूरी कौम को अगर धरना देना पड़ा तो धरना हमारे लिए माना और मुश्किल नहीं रखता, अगर एहतियाज करना पड़ा तो एहतियाज हमारे लिए मुश्किल नहीं है, अगर मज़ीद कुर्बानी देनी पड़ी तो मज़ीद कुर्बानी देंगे। इंशाअल्लाह हम सारे मुत्तहिद हैं, बेदार हैं, और एक होकर पूरे पाकिस्तान को बचाने के लिए और आज़ादी को बचाने के लिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए इंशाअल्लाह मैदान में हाजिर हैं और हमेशा रहेंगे। पोस्टमार्टम के बाद अल्लामा नासिर की नमाज जनाजा गवर्नर हाउस के बाहर आगा अली हुसैन कनी की इमामत में पढ़ाई गई, जिसके बाद जस्द खाकी मुल्तान मुंतकिल किया गया, जहाँ दोबारा नमाज जनाजा अदा की गई। रस्ते में जगह जगह मोमिनीन और मोमिनात की कसीर तादाद ने नोहे और मातम की सदाओं में शहीद के जस्ते खाकी का इस्तकबाल किया। मुल्तान में दोबारा नमाज जनाजा अदा की गई और या हुसैन की सदाओं में आपको सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद का मिसबाह-उद-दुजा यूनिवर्सिटी के मीडिया और सोशल मीडिया पर काम करने वाले जवानों के लिए पैगाम हमें हमेशा याद रहेगा। हर ज़माने का सबसे बड़ा हथियार मीडिया है। मैं इन जवानों की दराज़ी उम्र के लिए, इनके हाथों की मजबूती के लिए दिल की गहराइयों से दुआ गो। मिसबाह-उद-दुजा यूनिवर्सिटी के जितने नौजवान हैं, जैसा कि नाम से ही है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, उसी तरह से आपको खुदा कामयाबी दे, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा करे। अल्लाह हर उस बंदे की तौफीकात में इजाफा करे जो आपके साथ किसी भी तरह का ताउन